Didn't want us to know our true nature. They had the fact we're a perfect creation. Have us believe that we need sedation. Food, we don't need it, it lowers vibration. We're energy beaks, yeah, we don't need a thing. We're already complete. Just live and breathe. Want you to be a slave to your mind. Want you to eat and get disease. We've been blind for so long. Time to wake up, yeah. And we are breatharian. You're breathing right now. We are breatharian. The spirit breath is all around. Don't be afraid, it's in our DNA. We are meant to thrive on subtle energies. It's not far-fetched, no matter what you believe. This is really heaven on earth, but you just gotta say, don't be afraid, it's in our DNA. We are meant to thrive on subtle energies. It's not far-fetched, no matter what you believe. This is really heaven on earth, but you just gotta say. Meditation is the foundation. Qigong, breath work, choose a cultivation. It's showing that true potential, now life is so amazing. Grounding myself, feet on the earth, sun gazing. Being consistent, now my energy is raising. Human photosynthesis, come on and embrace it. Holistic life, let's make the transformation. No matter how I fail, discipline myself, I'm on my way. Inspiration helps, I just watch my old self melt away. Gotta make this change, doing this for me. Higher self awaits. We can live forever or for a very long time, I say. Don't be afraid, it's in our DNA. We are meant to thrive on subtle energies. It's not far-fetched, no matter what you believe. This is really heaven on earth, but you just gotta say, don't be afraid, it's in our DNA. We are meant to thrive on subtle energies. It's not far-fetched, no matter what you believe. This is really heaven on earth, but you just gotta say. Om Shanti. They don't want us to know our true nature. वो नहीं चाहते कि हम अपने स्वरूप को जानें. They hide the fact that we are a perfect creation. हम पहले से ही संपन्न हैं, संपूर्ण. Have us believe that we need sedation, food. We don't need it. It lowers vibrations. We are energy beings. Yeah, we don't need a thing. You're already complete. Just live and breathe. Want you to be a slave to your mind. Want you to eat and get disease. We have been blind for so long. Time to wake up. Yeah, we are Brotherians. Breath, श्वास, प्राण, ऊर्जा. जैसे जैसे इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, ऊर्जा की अनुभूति प्रगाढ़ होने लगी. ऊर्जा क्या है? ऊर्जा कैसी है? धीरे धीरे हम ऊर्जा के तल पर काम करना चालू करेंगे. एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस. जब भी हम किसी को मिल रहे हैं, एक समूह को मिल रहे, ऊर्जा का समूह, सेट ऑफ वाइब्रेशंस, नए स्थान पर जा रहे, वहां भी ऊर्जा है.
ये यात्रा धीरे धीरे सूक्ष्म और सूक्ष्म होती जाएगी। ईटिंग से ड्रिंकिंग और फिर ड्रिंकिंग से आगे चार्जिंग। धीरे धीरे आवश्यकताएं कम कम होती जाएगी। इस भट्टी के अंतिम 3 दिन यात्रा बहुत लंबी थी। आज का 106वां दिन और 21 दिन की इस भट्टी का 19वां दिन। सो अगले 3 दिन जो कुछ हम सेवन कर रहे हैं उसको डाइल्यूट कर देंगे। अब 25% डाइल्यूट पानी से। We are energy beings. We don't need a thing. We are already complete. हम पहले से ही पूर्ण हैं. Just live and breathe. They want you to be the slave to your mind. दुनिया चाहती है कि तुम गुलाम रहो. They make us believe that we need sedation. वो कहते हैं कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है, पर धीरे धीरे हम इससे भी परे निकल जाएंगे. The spirit breath is all around. Don't be afraid, it's in our DNA. We are meant to thrive on subtle energies. इसलिए डरना नहीं. It's in our DNA. हमारे रगों में समाया हुआ है ये कि हम संपन्न हैं, हम संपूर्ण हैं, हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है. It's not far-fetched. बहुत दूर नहीं है ये. No matter what you believe, this is really heaven on earth. But you just got to see. ये स्वर्ग है. ब्रदारियन की जो अवस्था है वो क्या है? स्वर्ग, संपन्न, पैराडाइज. यहीं इसी समय देवता स्थिति की अनुभूति. अभी के अभी इसी शरीर में पवित्र शरीर की अनुभूति, तन की पवित्रता. आज के वरदान में मेडिटेशन इज द फाउंडेशन. इस यात्रा में मेडिटेशन फाउंडेशन है, क्योंकि आत्मा ऊर्जा है और परमात्मा प्राणेश्वर है. वो ऊर्जा का सागर है. जैसे जैसे योग बढ़ते जाएगा भूख कम होती जाएगी. आत्मा तृप्ति का अनुभव करेगी. सब मिल रहा है, कुछ भी नहीं चाहिए. Qigong, breath work, choose your cultivation, showing our true potential. Now life is so amazing. Grounding myself, feet to the ground, earth, sun gazing, being consistent. Now my energy is raising. Human photosynthesis, come on and embrace it. Holistic life, let's make the transformation. No matter how I felt, discipline myself, I am on my way. Inspiration helps. I just watch my old self melt away. Old self, new self और higher self. जो पुराना मैं है वो क्या हो रहा है? पिघल रहा है, समाप्त हो रहा है. सुबह भी कहा है बाबा ने, नया वर्ष अर्थात पुराना छोड़ो और नया लो. सब कुछ नया. नई वृत्ति, नए संस्कार, नई दृष्टि, नया शरीर भी. पुराना सब कुछ खो जाए. Gotta make this change. Doing this for me, higher self awaits. We can live forever or for a very long time. Don't be afraid. It's in our DNA. We are meant to thrive on subtle energies. सटल सूक्ष्म शक्तियों पर हम जीवित रह सकते. जो असंभव लग रहा था वो संभव होगा.
आज बाबा ने उमंग उत्साह के बहुत सारे फायदे गिनाए। तूफान भी क्या हो जाएगा? तोहफा। उमंग उत्साह का रस। ज्ञान भोजन बनेगा, योग भोजन बनेगा, धारणाएं भोजन, सेवा भोजन, ये आहार होगा हमारा। ये योगी के सूक्ष्म आहार है। We are meant to thrive on subtle energies. It's not far-fetched. बहुत दूर नहीं। No matter what you believe, this is really heaven on earth. But you just gotta see. Don't be afraid. We are Hridayans. ऊर्जा पर जीने वाले, श्वास पर जीने वाले, व्रत पर जीने वाले, प्राण आहारी, ऊर्जा आहारी, ऊर्जा का सेवन पर जीवित रहने वाले। जब चेतना सूक्ष्म अति सूक्ष्म होती जाएगी तो ये सारी संभावनाएं प्रकट होने लगेगी। तो अंतिम 3 दिन जैसे कहा, अगले 3 दिन जो लिक्विड्स ले रहे हो उसको क्या कर देना है? डाइल्यूट। अगर जूस ले रहे हैं तो उसको पानी डालो, उसमें डाइल्यूट करते जाओ। 20% डाइल्यूट आज के दिन। हमें शक्ति कहां से मिल रही, और धीरे धीरे हम जानेंगे कि शक्ति का स्रोत कुछ और है, विल पावर है या और कुछ। तो हर दिन हम एक एक टूल ले रहे हैं। आज भी हम एक नया टूल लेंगे, हमारी इस यात्रा को सहज कर दे। पर उससे पहले कुछ टॉपिक्स है जो रह चुके हैं। उसमें से एक टॉपिक है अधिष्ठान। वो आज नहीं, कल या परसों लेंगे। भूख, हंगर, हम क्यों खाते हैं? इसके लगभग 21 कारण है। हमें एक ही कारण पता है। कौन सा? भूख। भूख लगती है इसलिए खाओ। और खाने के कितने कारण हैं? 21 रीजंस टू ईट। और उन 21 में से केवल एक ही है जो रियल है, बाकी सब फॉल्स तो नहीं कह सकते, झूठ तो नहीं कह सकते, परंतु वो कारण है। तो इस यात्रा में और आगे बढ़ने के लिए और सूक्ष्मता में जाने के लिए इस भूख को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कारण हैबिट। क्यों खा रहे हैं? आदत पड़ गई। उसका भूख से कोई भी संबंध नहीं, केवल आदत है, हैबिट। यह हैबिट बहुत गहरी है। कब से इस आदत के चपेट में आ गए हम? कब से? बचपन से। एक जन्म से या कई जन्मों से? कई जन्मों की आदत है। इस एक जन्म में उस आदत से पार निकलना। तो सबसे मुख्य कारण है आदत। दूसरा कारण एडिक्शन। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ये व्यसन हो गया है।
जैसे दारू पीने वाला दारू के बिना नहीं रह सकता, नशा करने वाला नशा के बिना नहीं रह सकता, जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाले बीड़ी सिगरेट के बगैर नहीं रह सकते, वैसे ही व्यक्ति इस फूड एडिक्शन के बगैर नहीं रह सकता। उसका ये व्यसन हो गया है, लत लग गई है उसको। उसका भूख से कोई भी संबंध नहीं है दूर दूर तक। तीसरा कारण इमोशनल इमोशंस। जब व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या करता है? खाता है। नेगेटिव थिंकिंग चलने लगती है, क्या करता है? खाता है। अशांत हो जाता है, क्या करता है? खाता है। क्योंकि भोजन क्या करता है? शांति प्रदान करता है अशांत चित्त को, परम शांति। पर कितने समय के लिए? थोड़े समय के लिए। जैसे कोई व्यक्ति दुखी होता है और कोई कॉमेडी शो देखने जाए तो उतने समय के लिए उसको उसका दुख दूर हो जाता है, वो हंसता है, पर वापस आने के बाद दुख वैसे ही है। वैसे कोई व्यक्ति दुख में डूब जाता है, फिर दारू पीने लगता है, शराब पीने के बाद दुख कम हो जाता है, उसे ऐसा लगता है। पर शराब का नशा जब उतर जाता है, दुख जैसे के वैसे ही, प्लस उसमें गिल्ट कॉन्शियसनेस ऐड हो गया है, एक अपराध भाव कि मैंने वापस पीना चालू कर दिया। दुख तो था ही, साथ में जो छोड़ दिया था वो फिर आ गया। इमोशंस। हमारे इमोशंस के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ईटिंग। व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है, नेगेटिव थिंकिंग चलती है बहुत, क्या करता है उस समय? कुछ खाता है, या तो सोएगा या तो खाएगा या तो मंदिर में जाएगा, भक्ति करेगा, संगीत, कविता, प्रकृति, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो एक कारण है खाने का, इमोशंस। जितने जितने इमोशंस स्टेबल होंगे उतना उतना ईटिंग पर संयम आते जाए, या फिर जितना जितना इस ईटिंग से मुक्त होते जाएंगे उतने उतने इमोशन स्टेबल होते जाएंगे। तो तीसरा कारण इमोशंस। चौथा कारण कंपनी। कंपनी अर्थात साथ, संगठन। कोई फेस्टिवल है, भूख है नहीं, भूख रहती है क्या? पर कंपनी है, दोस्त तो है, इसलिए दोस्तों के साथ खाते हैं, पार्टी करते हैं, संग का रंग लगता है। उन्हें खुश करने के लिए या अपनी भी इच्छा होती है थोड़ी थोड़ी। कंपनी ये भी एक कारण है, इसमें भूख का कोई संबंध नहीं। पांचवा रिवॉर्ड। रिवॉर्ड अर्थात पारितोषिक, इनाम। कोई अच्छा कार्य किया उसके बाद क्या करते हैं? पार्टी। सक्सेसफुल हो गया कोई, क्या करते हैं फिर? पार्टी बनती है। कोई भी पहली चीज जब करता है कोई, तो फर्स्ट टाइम जब कोई चीज करता है तो क्या करना पड़ता है? पार्टी। जैसे मेडिकल में कुछ भी नया करो, जो भी नए नए डॉक्टर्स आते हैं और वो जो छोटे छोटी प्रोसीजर करते हैं तो उनको पार्टी देनी पड़ती है, चाहे वो कुछ करे या ना करे। ऐसा रूल है मेडिकल में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, सब जगह, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, सब जगह पर नया कुछ करो तो पार्टी देनी पड़ती है। ना भी करो तो भी देनी पड़ती है इंजीनियरिंग। कोई भी नई प्रोसीजर करो। हम जब इंटर्न थे
इंटर्न एमबीबीएस के बाद ट्रेनिंग होता है 1 साल। तो जब सर्जरी में पोस्टिंग थी, बस खड़े रह के देख रहे थे ऑपरेशन करने वाले दूसरे, सिस्टर दूसरी, नर्सेस सब लोग अलग अलग, हम खाली देख रहे थे। और जब अपेंडिक्स दिखा तो सीजर हमारे हाथ में दे दिया, बोले काट। वो काट दी, बस तुमने ऑपरेशन किया, पार्टी। पूरे स्टाफ को पार्टी देनी पड़ी। काटते समय हाथ में पकड़ा दी। तो कोई भी काम करो तो रिवॉर्ड, उसके लिए पार्टी। तो वो एक कारण है ईटिंग, उसका भूख से कोई संबंध नहीं। उसके बाद में छठवा डाइट चेंज। मोटा है व्यक्ति, उसे पतला होना है, पतले को मोटा होना है, जो भी कुछ होना है अप डाउन, उसमें वो खाता है, वो भी एक कारण है डाइट चेंज। अगला कारण फोर्स्ड, जबरदस्ती फोर्स करते माँ बाप, खाओ खाओ खाओ, बचपन से ही दूध पियो, बादाम वाला दूध, तुम्हारा दिमाग उससे तेज होगा। गाजर का हलवा खाओ, तुम्हारी आंखें तेज होगी। हरी सब्जियां खाओ, ये खाओ वो खाओ। जब किसी की एग्जाम होती है बच्चों की, तो मम्मी कैसे करती है? कोई बेल बजाता है तो उसको कहते धीरे बेल बजाओ, बच्चा पढ़ रहा है। पिताजी जोर से चिल्लाते थे तो उनको कहते चुप, बच्चा पढ़ रहा है। वो कोई जोर से टीवी बजाते उसको कहते टीवी म्यूट करो, बच्चा पढ़ रहा है। बच्चा उठता है, वो कहते उठने की जरूरत नहीं, ये लो पानी, तुम पढ़ते रहना। फिर थोड़ी देर में उठता है, फिर मम्मी कहते हैं तुम बैठे रहो, ये लो नाश्ता यहीं पे, पर खाते रहो, पढ़ते रहना तुम। तो एक कारण है फोर्स, जबरदस्ती। सातवां कारण खाने का फोर्स्ड, आओ खाओ 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 खाओ। आठवां कारण पावर्टी या थ्रिफ्ट, बचाना है, फेंकना नहीं है। चीजें बच गई है, इसीलिए क्या करो, खा लो, फेंकना नहीं है। ज्यादा बन गया है हलवा, क्या करे, अभी ज्यादा बन गया तो सफल करो उसको, ब्राह्मणों की भाषा में सफल करो, फेंकना नहीं है। थोड़ा थोड़ा खा लो, खत्म हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा नहीं, पेट भर गया है, नहीं थोड़ा थोड़ा ले लो बस, फिर पूरा हो जाएगा। तो खाने का एक कारण है बचाना, भोजन को हम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए कहां डालते हैं, अंदर। जबकि जगह नहीं है। इसको कहते हैं थ्रिफ्ट या फिर पावर्टी, एक कारण। नेक्स्ट, अपीयरेंस। अपीयरेंस अर्थात देखने में कैसा है, एकदम कलरफुल। पेट भरा हुआ था, कुछ खाने की इच्छा नहीं थी, परंतु किसी ने दिखाया थोड़ा खा लो, नहीं नहीं, फिर दिखाता ये है अपीयरेंस, उसकी शक्ल, शक्ल देखते ही खाने की इच्छा होती। तो हम क्यों खाते हैं, क्योंकि वो दिखने में कैसा है, सुंदर है, दिखने में कैसा है, बड़ा कलरफुल है। नेक्स्ट, स्मेल।
स्मेल अर्थात सुगंध। यहां बैठे और अचानक कोई अपनी पर्स से सैंडविच अगर निकाले तो क्या होता है? सबको खाने की इच्छा होती। स्मेल स्मेल से की वजह से हम खाते। वैसे कोई इच्छा नहीं थी खाने की, भूख भी नहीं थी, पेट भरा हुआ था, पर स्मेल इतनी स्ट्रांग है कि उसके वजह से हम पुरानी यादें इमर्ज हो जाती है, क्योंकि सुगंध के साथ हमारा बहुत गहरा कनेक्शन है, बहुत गहरा। हमें याद है भक्ति मार्ग में हम एक मठ में जाते थे और उस मठ में एक अगरबत्ती की सुगंध, और वो ऐसी सुगंध थी कि एकदम मदहोश, पूरा नशा सा हो जाता था उससे। वो सन्यासी बैठते थे सामने मृदंग लेकर और फिर गृहस्थ बैठते थे पीछे और वो संगीत चालू हो जाता था। खंडन भव बंधन बंदी तो माए, बंगाली में भजन था। और वो जैसे ही चालू होता था और वो एक तरफ वो सुगंध, वो ऐसा शरीरीपन हो जाता था। और उसकी जो मेमोरी है बहुत गहरी थी। एक दिन हम यहाँ से गुजर रहे थे नक्की से, तो वही स्मेल कहाँ से आ गई पता नहीं, वही अगरबत्ती इतने सालों बाद, 15-20 साल बाद, जैसा वो अनुभव था उस दिन पुराना, बस वो वैसा ही हो गया चलते चलते। वो सारे दृश्य, वो सारे चित्र इमर्ज हो गए। सुगंध के साथ हमारा बहुत गहरा कनेक्शन। तो हम क्यों खाते हैं? सुगंध की वजह से। अगला, हम क्यों खाते हैं? टेस्ट। चीज कैसी है? स्वादिष्ट। भूख नहीं है, भूख तो है ही नहीं, परंतु स्वाद बहुत जबरदस्त है, बहुत ही स्वादिष्ट चीज है, इसलिए हम खाते। नेक्स्ट, हम खाते इसलिए क्योंकि वो है। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि रखी है सामने, कोई मतलब नहीं है खाने का, पर अकेले है, फ्रिज भरा हुआ है, किचन में डब्बे डुब्बे रखे हुए हैं, सामने ही रखा हुआ है, और कोई है भी नहीं। किसी को क्या पता चलता है? और कि कोई देखता थोड़ी ना है, गिन के थोड़ी ना रखे हुए। हाँ, कुछ कुछ जगह पर गिन गिन के रखते हैं चीजें। दो बहनें एक बार ओपीडी में आई थी और एक बहन कह रही थी, ये जो है ना, दो कन्याएं थी, ये जो दूसरी कन्या है ये दिन रात खाती रहती है, 2-2 घंटे में, 1-1 घंटे में इसको भूख लगती है। हमने कहा कब से? तो उसने कहा जब से मधुबन में आई है तब से। मधुबन में कब से? 10 दिन से। और उसके पहले सब ठीक था। यहीं हो रहा है ये सब, और कुछ बताओ? हमने पूछा, बोलते और क्या बताए, बस उसको भूख ही लगती रहती है, दिन रात खाती रहती है, खाती रहती है, 1-1 घंटे में, 2-2, रात को 1 बजे उठती है, फिर 2 बजे उठती है, फिर 3 बजे खाती है, फिर सुबह खाती है, फिर 8 बजे खाती है, 2-2 घंटे में खाती रहती है। ऐसा क्यों? वो दूसरी बहन कह रही थी, फिर उससे बात किया तो कहती है, अभी हम जिस नए सेवा केंद्र पर है वहां हर चीज गिन गिन के रखी है। इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए इतना दिन का जो दमन था वो एकदम से बाहर निकल रहा है। ऐसा लग रहा है क्या खा लूं और क्या नहीं, वापस जाएंगे तो मिलेगा नहीं। गुलाब जामुन बनते हैं तो गिन के। तो एक कारण क्या है खाने का? चीजें है इसलिए, भूख का कोई संबंध नहीं है। अगला कारण, किसी
प्रिय ने हमें गिफ्ट दी है। हमारा कोई प्रिय, वो हमारे लिए खास बना के लाता है। हमने आज सुबह ही अमृत वेला प्रतिज्ञा की थी कि आज से ये बंद। आज सुबह ही अमृत वेला प्रतिज्ञा की थी, और फिर प्रतिज्ञा को पोस्टपोन, तोड़ना पड़ता है। तो एक कारण क्या है? गिफ्ट, क्योंकि कोई हमें गिफ्ट में दे रहा है कोई चीज, इसलिए। अगला कारण बीमारी। कुछ कुछ बीमारियां हैं जिसमें भूख भयंकर बढ़ जाती है। थायराइड की कुछ बीमारियां हैं, या और भी कुछ एंडोक्राइनल पैथोलॉजीज है जिसमें व्यक्ति को दिन रात भूख लगती रहती है। जैसे सबसे मेन कारण, अगर किसी को भूख लगती है दिन रात, तो मेन डायग्नोसिस है डायबिटीज। डायबिटीज में 3 चीजें होती है: भूख बढ़ जाती है, प्यास बढ़ जाती है, और पेशाब ज्यादा। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ये ट्रायड है डायबिटीज का। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति में होगा, परंतु यूजुअली ये होता है। परसों ही एक पेशेंट आया, यंग है, ज्यादा नहीं, 40 साल की उम्र, व्हील चेयर पर लेके आए उसको। क्या तकलीफ है? बहुत कमजोरी है, खांसी हो रही है, एक्सरे किया, एक्सरे नॉर्मल। और क्या हो रहा है? वो ऐसा एकदम डल, उसको दिखाई नहीं देता कुछ, इसको दिखाई नहीं देता। हमने कहा आई चेकअप करके आओ। आई चेकअप करने भेजा तो आई वालों ने कहा कि इसको कैटरेक्ट है, दोनों आंखों में मोतिया हो गया है, आप पेशेंट हमारे अंडर ट्रांसफर कर दो, हम ऑपरेट करेंगे। हमने कहा रुको, पहले इसको ब्लड टेस्ट करते। ब्लड टेस्ट किया उसका, शुगर 500 के ऊपर। ये फर्स्ट मैनिफेस्टेशन। फिर पूछा भूख लगती है क्या? दिन रात भूख लगती रहती है। प्यास आती है, प्यास, बहुत पीने की इच्छा होती है। यूरिन, दिन रात यूरिन जाते रहता है, बस पेशाब ही पेशाब। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ये ट्रायड है डायबिटीज का। तो ऐसे में पेशेंट की भूख बढ़ जाती है। तो हो सकता है जिसको दिन रात भूख लग रही है वो शरीर की कोई बीमारी है। हाइपरथायरॉयडिज्म, भूख बढ़ती है, वजन घटता है, पेशेंट खाते रहता है पर वजन दिन रात घटते जाता है, हाइपरथायरॉयड की बीमारी। तो ऐसी बहुत सी बीमारी है जिनका डायरेक्ट सीधा कनेक्शन भूख से। कई बार पेट में कीड़े होते हैं, और ये भी एक डिटॉक्स सिम्टम्स है। कई बार जो ये भट्टी कर रहे हैं उन्होंने ये भी देखा होगा, पेट से कीड़े निकल रहे, बड़े बड़े कीड़े। पेशेंट्स आके बताते हैं इतना बड़ा कीड़ा निकला, कोई निकाल के भी लेके आता है बोतल में भर के, दिखाने के लिए निकला सुबह, बड़े बड़े कीड़े। उन जब पेट में ढेर सारे कीड़े रहते हैं, व्यक्ति खाते रहता है परंतु खून बढ़ता नहीं है, हीमोग्लोबिन की कमी रहती है। और इसकी भी बहुत सारी विधियां है कि पेट के कीड़े कैसे निकाले जाएं। उसमें कई लोग 3 दिन वाटर फास्ट पर जाते हैं, जिससे तीसरे दिन पूरे कीड़े बाहर निकल जाते हैं। तो एक कारण क्या है भूख का? बीमारी, शरीर की बीमारियां, भूख का या फिर खाने का। अगला कारण खाने का है ग्राउंडिंग। भोजन हमें क्या करता है? ग्राउंड करता है, धरती पर लाता है। इसलिए जो लोग ड्राई फास्ट करते हैं, वाटर फास्ट करते हैं, स्थिति एकदम ऊपर चली जाती परंतु फिर नीचे आ जाते हैं। इसलिए कई बार रात में जब नींद नहीं आती है, क्यों नहीं आती है? जब खाते नहीं है तो क्या होता है? नींद ही नहीं आती। इसलिए खा लो तो क्या होता है? फिर थोड़ा सा धरती पर उतरते हैं और शरीर सोता है। फूड लोअर्स द वाइब्रेशंस, इसलिए भी फूड की आवश्यकता इसके लिए भी है, थोड़ा सा वाइब्रेशन धरती पर उतरने के लिए। नहीं तो व्यक्ति तो एकदम ऊपर ही रहेगा। श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन में दिखाते हैं, निरंतर भाव समाधि में, जब देखो तब भाव समाधि। कोई गीत सुन लिया, भाव समाधि में चले गए। कोई बगुले को देख लिया, स्वच्छ बगुले उड़ रहे, एकदम भाव विभोर चेतना, एकदम अशरीरी। फिर उनके भक्त तो उनको नीचे लाते थे,
वो बंगाल में मिठाई होती है ना, संदेश, वो संदेश खिला के उनको फिर नीचे लाया जाता था, सौंदेश। जिलेबी खिलाकर उनको नीचे लाया जाता था कि नीचे आओ, क्योंकि वो शरीर में रहते नहीं थे। उनको लेवल 4 से लेवल 3 या लेवल 2 पे लाया जाता था जबरदस्ती, क्योंकि भक्तों का कल्याण करना है, कुछ ज्ञान सुनाओ, कुछ बातें सुनाओ, उसके लिए। नहीं तो वो एकदम भाव विभोर और मगन अवस्था में अचेत पड़े रहते थे। उस अवस्था से नीचे लाने के लिए, ग्राउंडिंग के लिए, अर्थिंग के लिए फूड की आवश्यकता है। इसके लिए हमने कहा कि रात में थोड़ा सा हेवी, संसार में कहते थोड़ा हेवी ले लो, जो इस मार्ग पर है, तो थोड़ी नींद आ जाए, नहीं तो रात भर जागे रहेंगे। वैसे योगियों के लिए अच्छा भी है। तो एक कारण क्या है? खाने का ग्राउंडिंग। भोजन से क्या होता है? ग्राउंडिंग होता है, उसलिए हम खाते हैं। कितने कारण हो गए? 15। उसके बाद में बोर्डम। क्यों खा रहे हैं? बोर हो रहे हैं, बोरियत, कुछ तो करना है, तो क्या करें? इजीएस्ट मार्ग कौन सा है बोर्डम को दूर करने का? खाओ। भूख नहीं है, आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी खा लिया। टाइम पास, टीपी, टीपी के लिए खाते रहो, टाइम पास। तो बोर्डम। अगला खाने का कारण है भय। क्यों खाते हैं? भय, क्योंकि नहीं खाओगे तो मर जाओगे, नहीं खाओगे तो ये डिफिशियंसी हो जाएगी, ये खाओ, ये नहीं खाओगे तो दिमाग कैसे तेज होगा, बादाम खाओ। सब खाओ। महात्मा गांधी अपनी बायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, मैंने नॉनवेज क्यों चालू किया? क्योंकि जन्म तो वैष्णव परिवार में हुआ, परंतु नॉनवेज चालू किया अपने एक मित्र के साथ। पूरा वर्णन है उस मित्र का। उस मित्र से दोस्ती हुई, उस मित्र ने चोरी करना सिखाया, उसके साथ बीड़ी पी छुप छुप के, और फिर उसने सिखाया हम गुलाम क्यों है अंग्रेजों के, क्योंकि अंग्रेज मांस खाते और हम भारतीय मांस नहीं खाते, इसलिए हमें खाना चाहिए। वो लिखते हैं मैंने फिर वो भी किया, और फिर पश्चाताप का भी एक चैप्टर है, फिर अपने पिताजी को एक खत भी लिखा, वो सारा उसमें वर्णन है। तो खाने का एक कारण क्या है? भय। अगर नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? कमजोरी आ जाएगी, ताकत कम हो जाएगी, चक्कर खा के गिरोगे, इसलिए खाओ, बहुत खाओ, ताकत आएगी, डिफिशियंसीज हो जाएगी। तो एक कारण है भय, या फिर कहो बिलीफ सिस्टम। इसलिए ये पूरी प्राणिक यात्रा का मूल कारण जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो उस बिलीफ सिस्टम पर काम कर रहे हैं। मैं पहले से ही संपन्न हूं, आई एम कंप्लीट, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। पर यह अवस्था सीधा एक दिन में नहीं आएगी, धीरे धीरे सॉलिडिटी को छोड़कर हम लिक्विडिटी पर आए। ये एक मेजर स्टेप है उस ट्रांजिशन तक पहुंचने की, आगे की अवस्था तक पहुंचने की। इसलिए कहा ये 3 दिन जो बचे हुए हैं, इसमें जो लिक्विड्स ले रहे हो उन लिक्विड को आज डाइल्यूट करते जाओ। उतनी लिक्विड्स की भी आवश्यकता नहीं, 25% डाइल्यूट कर दो आज। जूस ले रहे हैं, रोज 1 ग्लास भर लेते हो, आज आधा ग्लास जूस, उसमें आधा ग्लास 25% पानी। तो फियर्स, ये भी एक कारण है। उसके बाद अगला कारण, बचपन में जब कोई चीज चुरा के खाते तो कैसा होता है? मजा आता है। थेफ्ट या चीटिंग। एक होता है दुकान से फल लेके खाना, एक होता है पड़ोसी के पेड़ से छुपके से तोड़ के खाना। तो
खाने में वो जो मजा है वो क्यों खा रहे? भूख रहती है कि बच्चों को? तो एक कारण वो भी है कि चोरी करके लेने से मजा आता, फ्री में जो मिलता है। भाइयों को अपनी बहन की बैग से चोरी करके खाने में मजा आता है, तो वो भी एक कारण है। फिर अगला कारण कितने हो गए ये? 18। 18। उसके बाद में 19वां कारण, रियल नीड ऑफ बॉडी। ये एकमात्र ऐसा कारण है कि शरीर को जरूरत है, ये रियल नीड है शरीर की, इसलिए चाहिए। पर शरीर को जो चाहिए वो बहुत कम है, और जितना हम डाल रहे हैं वो कहीं ज्यादा, 10 गुना ज्यादा अगर देखा जाए तो। ये कैसे कहा जा सकता है? ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि लोग ऐसे संसार में रहे हुए हैं जिन्होंने कम से कम चीजों में अपने आप को जीवित रखा, और बहुत अच्छा रखा, और बहुत स्वस्थ रखा। हम जितना खाते हैं उससे आधा पेट अपना और आधा पेट डॉक्टर का भरते। एक बहुत बड़ा डॉक्टर छुट्टी पर जाता है तो अपने हॉस्पिटल का चार्ज अपने बेटे को सौंप कर जाता है कि मेरे एब्सेंस में तुम देख लेना। बेटा नया है, अभी अभी डॉक्टर बना है। 3 मास के बाद पिताजी लौट कर आते हैं, कहते कैसा रहा? वो कहता है आपने उस पेशेंट को इतने सालों से आप ट्रीट कर रहे हो, मैंने 2 महीने में उसको ठीक कर दिया। आप 10 साल से जिसका इलाज कर रहे हो। वो कहता है अरे मूर्ख, उसी की वजह से तो तुम एमबीबीएस बने। पेशेंट क्या है डॉक्टर का? ब्रेड एंड बटर, सोर्स ऑफ इनकम। इसके लिए आने दो, आते रहे। बीमारी पूरी थोड़ी ठीक करनी पड़ती है। तो ये एक कारण है, रियल नीड ऑफ बॉडी। रियल नीड कितनी है हमारी, इसके भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि ये रियल नीड ऑफ बॉडी है। उसके बाद में अगला कारण, मेरे ख्याल से 20 हो गए। 20 हो गए। अननोन। अननोन अर्थात पता ही नहीं क्यों हम ले रहे, खोज जारी है अभी। और एक कारण, बिलीफ और फियर को अलग अलग कर दो। एक होता है भय की वजह से, एक है बचपन से सिखाया गया है, वो हमारी मान्यता है, बिलीफ सिस्टम। एक है फियर, एक है बिलीफ सिस्टम। तो ऐसे ये टोटल 21 कारण है। क्या करने के? खाने के। इन कारणों की वजह से हम खाते हैं। उसमें से 20 कारण जो है वो ऐसे ही है। एक ही कारण है जो रियल नीड ऑफ बॉडी है, जिसको कहते हैं RBN, रियल नीड ऑफ बॉडी। RNB, रियल नीड ऑफ बॉडी। और इस यात्रा में हमें इसी भूख को समझना है, क्योंकि शरीर को भूख को समझने के साथ साथ हम क्या समझने जाएंगे? मन की भूख, हृदय की भूख, हंगर ऑफ द फ्लैश, काम विकार की भूख। ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि जो चीज इस भूख में अप्लाई होती है वही सारी चीजें उधर भी अप्लाई होनी चालू हो जाएगी। जिसने इसको समझा वो अपनी बाकी भूख को भी समझने लगेगा, क्योंकि भूख केवल भोजन की नहीं है, भूख पैसों की भी है, भूख सत्ता की भी है, भूख मान सम्मान की भी है, भूख प्रशंसा की है, भूख पद की है, पोजीशन की है, प्रतिष्ठा की है, भूख मेहमान नवाजी की है, भूख प्रेम की है, भूख अटेंशन की है, भूख प्रसिद्धि की है, नाम हो जाए, लोकेशना की है। ये सारी भूख ही है।
एक रीति से देखा जाए तो सारा संसार भिखारी है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे अध्यात्मवादी हो या लौकिक वाला कोई हो, सब जगह भूख ही काम कर रही है। इस भूख को समझना बहुत बहुत जरूरी है। और हमने देखा भूख के ये 21 कारण है जिनका वास्तविक भूख से कोई लेना देना नहीं। और दूसरी बात, ये सारी भूख को तृप्ति के जितने मार्ग है वो तृप्त होने के बाद भी अंदर में खालीपन बना रहता है। जैसे कोई दारू पीने वाला दारू पीता है, उसका दुख थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, खत्म नहीं होता है, वो केवल सिडेशन है, एक भूल है। भूल अर्थात वो एनेस्थीसिया। वैसे ही ये भी है। इसलिए ये पूरी यात्रा जो हम कर रहे हैं, धीरे धीरे हम एक अवस्था में पहुंचेंगे और ऑलरेडी कई सारे आत्माएं इस अवस्था तक पहुंच गए हैं कि अब ना पीने की भी इच्छा नहीं होती है। अब पीने की भी इच्छा नहीं होती है। जो 5 बार पीते थे ऐसे लगता है अब 3 ही बार पियो, जो 3 बार पी रहे उनको लगता है पियो ही नहीं, पर फिर भी इस भट्टी का नियम है इसलिए पीना चालू है, पर अंदर से इच्छा नहीं है। अब लक्ष्य केवल क्या है, खाने या पीने का या खाने का, जीना है। इसलिए अभी तक क्यों खा रहे थे, किस लिए खा रहे थे, खाने के लिए जी रहे थे। अब किस लिए जी रहे, खा किस लिए रहे या पी किस लिए रहे, क्योंकि शरीर को ठीक रखना है इसलिए। और वो भी धीरे धीरे शरीर एक स्टेबिलिटी को पहुंचेगा, वेट स्टेबल होते जाएगा, एनर्जी लेवल हाई होती जाएगी, नींद कम होती जाएगी और निरंतर आनंद की अवस्था रहेगी। और यही अवस्था कंटिन्यूअस रहेगी फिर, चाहे हम खाएं या न खाएं, पिए या न पिए। ये केवल इनिशिएशन है। इसके बाद की हर एक को अपनी प्लानिंग करनी है। 23 तारीख से 1 तारीख से 28 को ये पूरा हो रहा है। 1 तारीख से अपनी प्लानिंग करनी है क्या करना है। और जैसे हमने कहा, हर मास 9 दिन ये भट्टी कर सकते हैं अपनी खुद की, या 21 दिन कर सकते हर मास। और फिर जो बचे हुए दिन रहते हैं उसमें सॉलिड फूड पर आ जाओ और देखो क्या प्रभाव हुआ। योग की स्थिति देखो, अशरीरी अवस्था देखो, नींद देखो, ऊर्जा देखो, शरीर में बीमारियों को देखो क्या हुआ। कितने सारे भाई बहने हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका कोई ना कोई दर्द जो इतने समय से नहीं गया, ना फिजियोथेरेपी से ना मैग्नेट थेरेपी से, वो अपने आप इस लिक्विड डाइट से चला गया। जबकि वो सब ले रहे, कुक्ड भी ले रहे, फिर भी क्योंकि सॉलिड फूड से शरीर में एक जड़ता आती है, रिजिडिटी आती है, और वो जड़ता धीरे धीरे लिक्विड से निकलती जाती है, पर टाइम लगेगा। किसी का बहुत जल्दी होगा, किसी को टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे एक उम्र पीछे होती जाएगी। लोग कहेंगे तुम्हारी उम्र कितनी है, कोई है 40 साल का, पर वो 20 साल का दिखने लगेगा धीरे धीरे। बालों का एक है, लोग कहते हैं कि तुम लोग कहते हो कि रॉ पर जाने से, पर तुम्हारे बाल तो अभी तक काले के काले तो हुए ही नहीं, सफेद के सफेद है और सफेद हो रहे। तो बालों का ऐसा है, डायरेक्ट हर एक में ये नहीं होगा। भले कोई केवल फ्रूट्स पे है, फिर भी कईयों के बाल सफेद जल्दी हो जाते। तो बालों का जो परिवर्तन है जरूरी नहीं सब में होगा, परंतु ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे गए हैं कि जिसमें ये लोगों ने बताया है कि कईयों के दांत जो थे 4 बार नए दांत आए। ऐसे उदाहरण है इतिहास में, सारे के सारे दांत गिर गए 4 बार और चारों बार नए आए। पूरे के पूरे बाल दिमाग ये ऊपर सिर के छोड़ के बाकी सारे जो शरीर के बाल है वो काले हो गए। ऐसे भी कई उदाहरण है। तो ये सारे उदाहरण इतिहास में है। एक तो पूरी किताब है इसके ऊपर, पूरी की पूरी किताब है होटिमा हिल्टन की, लॉन्ग लाइफ इन फ्लोरिडा। कल हम लेके आएंगे वो किताब। उसमें कम से कम 60-70 लोगों का वर्णन है जिनकी आयु 150, 160, 180, 250, 110 ऐसी आयु वाले लोगों का वर्णन है पूरा उस किताब में। उसमें एक वर्णन ये भी है कि एक व्यक्ति था विदेश का जिसकी आयु थी 120, तो वो भारत आया। उसको लगा मैं यहाँ के लोगों को देखूं कैसे है, बहुत पुरानी कहानी है। और जब यहाँ के लोगों को देखा उसने, तो उसने देखा
कि वो तो बहुत बूढ़ा है, वो बहुत बूढ़ा है, और यहाँ जो लोग हैं वो बहुत जवान है, परंतु जो जो जवान दिख रहे हैं उनकी आयु 250 है, इसकी आयु थी 120। वो किनके सामने बूढ़ा दिख रहा है? जवान लोगों के सामने। फिर उन्होंने उसने पता करने की कोशिश की उनकी उम्र कितनी है, उसको पता चला उनकी उम्र है 220, 250। बाइबल में पूरा, ओल्ड टेस्टामेंट पूरा जो है बाइबल में, उसमें जितने सारे लोग हैं उन सब की उम्र ऐसी ही बताई हुई है। और मुरलियों में सतयुग त्रेता में उम्र कितनी बताई है बाबा ने? ऐसी ही बताई है उम्र, ज्यादा उम्र। अकाले मृत्यु होती नहीं है। मृत्यु हम क्यों मरते हैं इसका उत्तर साइंस के पास अब तक भी नहीं है, विज्ञान के पास इसका उत्तर ही नहीं है कि हम क्यों मरते। मरने का कोई कारण ही नहीं है। हाँ, जो पोल्यूशन अंदर जो टॉक्सिन्स डाले उसकी वजह से तुम मरते हो, नहीं तो ये शरीर ऐसा है ही नहीं कि जो मर जाए। ये मंदिर कहा ना, तन की पवित्रता। तो ये सारे कारण है किसके? खाने के। हमें इनको समझना है। तो 21 कारण हमने गिनाए, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहला कारण, क्यों खा रहे हैं हम? क्योंकि आदत है, बहुत ही खराब आदत है ये, मुक्त हो जाओ इस आदत से, बैड हैबिट। दूसरा, व्यसन हो गया है, इस व्यसन से मुक्त होना है। जैसे दारू पीने का व्यसन है वैसे खाने का व्यसन है, फूड एडिक्शन, सबसे गहरा एडिक्शन है ये। और ये केवल एडिक्शन ही है। फिर कोई लोग पूछते हैं कि अगर हम ना खाएं तो शरीर कैसे चलेगा? फूड एक स्टिमुलस मात्र है। जैसे वो पानी गिरता है ना, एक मशीन है या डैम है, तो पानी गिरता है, ये मशीन चालू हो जाती, ये पानी की वजह से मशीन, ये पानी नहीं आता इधर, ऊपर से जो पानी गिर रहा है इस मशीन पर गिर रहा है, मशीन चालू हो जाती है और पानी यहाँ से आना चालू होता है। ये केवल एक स्टिमुलस है, बस एक उत्तेजना, बाकी उसको उसकी आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप चलता है। बॉडी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ क्रिएटिंग, सब कुछ, सारी क्षमताएं शरीर में है। शरीर इतना मैजिकल है, जिन लोगों को हमने देखा और रिलेटिव्स को कहा कि ये पेशेंट नहीं जिएगा, वो भी पेशेंट जी गए। एक तो माता ऐसी एडमिट हुई थी, इतनी सीरियस थी, इतनी सीरियस थी, उसको वेंटिलेटर पे डाला, उम्र 80 साल थी, उसको इतने सारे सपोर्ट चालू थे, बीपी रिकॉर्डेबल नहीं था, यूरिन नहीं आ रहा था, सारा मल्टी ऑर्गन फेलियर चालू हो गया था। उसके रिश्तेदार को हमने आईसीयू के बाहर बताया कि ये माता जी आपकी जो है दादी माँ जाने वाली है। वो कहते हैं नहीं जाएगी। हमने कहा क्या? रिलेटिव्स मुझे बता रहे कि आप चिंता मत करो, नहीं जाएगी। हमने कहा बहुत ज्यादा सीरियस है, नहीं बचेगी। वो कहती है नहीं जाएगी, आप चिंता मत करो। पेशेंट डॉक्टर को समझा रहे, रिलेटिव्स। वो कहने लगे, हमने कहा ठीक है, और देखा धीरे धीरे वो माता जी इंप्रूव होने लगी, धीरे धीरे उसके सपोर्ट चाले निकल गए, यूरिन आउटपुट चालू हो गया, वेंटिलेटर निकल गया, वार्ड में शिफ्ट कर दिया, और फिर छुट्टी भी कर दी 15-20 दिन के बाद। फिर वो घर गई। उसके रिलेटिव्स ने कहा उसकी इच्छा है जब तक उसकी जो पर पोती है, पोती की बेटी, उसकी शादी जब तक नहीं देख लूंगी तब तक मरूंगी नहीं, जो करना है कर लो। घर गई, पर पोती की शादी हुई और घर पे शरीर छोड़ दिया। फिर ये कैसे जी? विल पावर। उसकी इच्छा थी, मैं मरना ही नहीं है मुझे। डॉक्टर कह देते पेशेंट को तुमको कैंसर हो गया है, तुम मर जाओगे। एक अमेरिकन लेखक ने लिखा है कि मैंने ये मानने से अस्वीकार कर दिया, डॉक्टर को कहने दो, कह रहा है मैं मरना ही नहीं चाहता, मुझे जीना है, अर्थात जीना है बस। उसने संकल्प भी कर लिया और वो जिया, 20 साल जिया, और कितनी 20 किताबें लिखी, और जबकि डॉक्टर ने कहा था बाय बाय। तो विश्वास का नियम, प्रेम का नियम, लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ फेथ, लॉ ऑफ अफर्मेशन, लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ विल पावर, ये सब बहुत बड़े लॉ है जो मेडिकल साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अभी भी माउंट में ऐसे कम से कम 7-8 लोग हैं जो जी रहे, हम उनको कहते हैं ये बोनस जीवन है, ये तो कब के जाने वाले थे, बोनस जीवन है ये।
क्योंकि डॉक्टर ने तो कब से कह दिया है कि तुम बचोगे नहीं, फिर भी जी रहे, चालू है। और वो ओपीडी में आके कहते डॉक्टर करो ना, हमारा टिकट काट दो ना। हम कहते अभी हाउसफुल चल रहा है, बाद में आना, अभी बहुत हो गया, अभी जाना है। हमारे पीस पार्क की एक भाई है, कल आए थे उनको लेके, बोले इन्होंने बोला था फरवरी 3 को जाएंगे। मैंने बोला फिर क्या हुआ? बोले पोस्टपोन कर दिया। और क्या, भाई है अपने एक सेवा। तो विल, तो हमें जीवित रहने के लिए केवल भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो भोजन क्या हो गया? एडिक्शन हो गया है। तीसरा कारण खाने का। तीसरा इमोशंस। हम इतने मेंटली जब स्टेबल रहते हैं, बाबा कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी, खाने की याद रहती है क्या? बेटा विदेश से आता है, माँ को याद रहता है कुछ भोजन विजन? वो बनाने में लगी रहती है, ये करूँ वो करूँ। शादी होती है घर में, एक ही बेटा है जिसकी शादी है, कैसे सारे बिजी हो जाते हैं। खाने की याद रहती है किसी को? नहीं। तो खुशी, खुशी जब होती है तब भूख नहीं होती है। योग में मगन अवस्था है, दिन रात लगे हुए, इतना प्यार उमड़ रहा है, भूख की याद रहती है क्या? नहीं। नेक्स्ट कारण कंपनी, नेक्स्ट कारण रिवॉर्ड, नेक्स्ट कारण डाइट चेंज करना है इसलिए, अगला कारण फोर्स की वजह से खाओ खाओ खाओ, अगला पावर्टी, हम बचाना चाहते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। हम फेंकना नहीं चाहते, हम कहेंगे पेट में डालने से अच्छा गाय को दे दो, पेट में डालने से अच्छा गाय को दे दो, उसके पेट में जाने दो, या प्रकृति को रिटर्न कर दो। इस सृष्टि में कुछ भी लॉस नहीं होता है, उसको रिटर्न कर दो। इधर अंदर डालने से भूख नहीं है फिर भी खा रहे, उससे तो अच्छा जाने दो उसको। अगला कारण अपीयरेंस, उसकी शक्ल। अगला कारण उसकी स्मेल। अगला कारण उसका स्वाद। अगला कारण सामने रखा है इसलिए खा रहे हैं। अगला कारण किसी ने गिफ्ट दिया है। अगला कारण कोई बीमारी है उसकी वजह से। अगला कारण ग्राउंडिंग करता है। अगला कारण बोर्डम को दूर करता है। अगला कारण भय है। अगला कारण बिलीफ सिस्टम। अगला कारण चीटिंग, या तो कोई लोग चीटिंग करते हैं ना, डॉक्टर ने कहा है कि मीठा नहीं खाना, तुमको डायबिटीज आ गया, तो कहते 6 दिन तो नहीं खाया, एक 7वां दिन एक संडे रखा है बस चीटिंग डे। जिम में जाते हैं 6 दिन परहेज करते, एक दिन चीटिंग डे रखते हैं, खास चीटिंग डे, उस दिन खाते हैं। अगला कारण रियल नीड ऑफ बॉडी, RNB। अगला कारण अननोन, अज्ञात, पता ही नहीं हम क्यों खा रहे। अब और 2-3 कुछ बातें हैं। ये जो यात्रा है प्राणी की यात्रा, उसकी एक विधि तो हमने देखी है लिक्विड, उसकी बहुत सी विधियां है इस प्राणी की यात्रा में आगे बढ़ने की। तो उसकी इंग्लिश क्लासेस में हमने ये बातें देखी थी, अब केवल नाम सुना रहे। पहली विधि है नेचुरल। नेचुरल, आप नेचुरल डाइट पे चले जाओ, धीरे धीरे अपने आप खाना कम कम होते जाता है। जो कुक्ड खा रहे हैं वो जैसे ही रॉ पर जाते हैं, देखते हैं उनकी भूख अपने आप कम हो गई है। जो कुक्ड 3-3 बार खाते थे फिर भी भूख नहीं बढ़ती थी, अब सुबह सलाद ले लिया, जूस ले लिया, फिर सलाद ले लिया, अपने आप कुक्ड कम कम होते जाता है। अपने आप सीरियल्स जो है, अनाज जो है कम कम होते जाता है। अपने आप अवन की बनी हुई चीजें, गैस पे बनाई हुई चीजें कम कम होती जाती है। तो ये एक विधि है, कई लोग इस विधि से जाते हैं, परंतु इसमें चीटिंग बहुत होती है, इसलिए हमने ये विधि नहीं अपनाई है। ये विधि इस भट्टी में हमने नहीं अपनाई है। नेचुरल फूड अर्थात रॉ डाइट, ये एक मेथड है लेवल 4 तक पहुंचने की। दूसरी विधि है सडन, ये संतों के जीवन में हुआ है, अचानक संतों के जीवन में होता है ये। जैसे सेंट फ्रांसिस, सेंट निकोलस, अचानक उसके एक आत्मा दिखी और उसके शरीर में प्रवेश कर गई, और उस दिन से उसने खाना और पीना बंद कर दिया, फिर उसे आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जैसे प्रहलाद जानी जी जो नीचे अंबाजी में थे और अभी अभी जिन्होंने शरीर छोड़ा, माता जी, उनके बचपन में देवी स्वप्न में आई और देवी ने कहा आज के बाद तुम्हें किसी भी भोजन की और पीने की जरूरत नहीं है। स्टर्लिंग हॉस्पिटल में 7 दिन उनको रखा था, 11 दिन सारे प्रयोग किए डॉक्टर सुधीर शाह सर ने, और वो सब कुछ किया उनके ऊपर। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको गिफ्ट के रूप में मिल गया सडनली, जिन्होंने कर लिया। गिरिबाला, उसकी सास उसको इतना परेशान करती थी
क्योंकि उसको 11 साल की उम्र में शादी हो गई और दिन रात खाती रहती थी। तो सास ने कहा तुम क्या हो, जब देखो तब खाती रहती हो। उसके सास के सामने उस 11 साल के बच्ची ने प्रतिज्ञा की, आज के बाद भोजन को हाथ ही नहीं लगाऊंगी। वो गई, भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु किसी गुरु को भेज। गुरु आए और गुरु ने कहा आज से तुझे फूड की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू केवल लाइट पर, प्रकाश पर जीवित रहेगी। और वो पूरा 80 साल, उसने 60 साल केवल प्रकाश पर गुजारे, लिविंग ऑन लाइट, वेदारियन लेवल 4। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो सडनली, तो ये गिफ्ट के रूप में भी किसी को मिल जाता है, उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ती है लेने की कुछ भी। तीसरा, फोर्सफुल, ये खतरनाक विधि है। लोग जबरदस्ती किताबों में पढ़ते हैं, ऐसी बहुत सी किताबें आई है। ये पहली किताब है जिसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, प्राणिक नरिशमेंट, जसमहीन। इस लेखिका ने ऐसी 11 किताबें और लिखी है, पर यह बहुत पुरानी किताब है और उसने खुद कहा है कि इस किताब में जो बातें लिखी है, अभी बहुत सारी बातें चेंज हो गई है, पर उसने पहली बार ये कॉन्सेप्ट डाला इसमें, हाउ टू सर्वाइव ऑन प्राणा, केवल प्राणिक ऊर्जा पर कैसे जीवित रहा जा सकता है। पूरा डिटेल में एक एक चीज का वर्णन इसमें लिखा है और पूरी किताब में भोजन का कहीं वर्णन नहीं है। सारी चर्चा इस किताब में केवल और केवल ऊर्जा पर है, एनर्जी पर। हाउ टू सर्वाइव ऑन एनर्जी, व्हाट इज प्राणा प्रोग्राम। और वर्ल्ड में जो हंगर है, वर्ल्ड में जो पॉवर्टी है, दुनिया में इतनी भूखमरी है, उसको इस जीवन शैली से कैसी उस भूखमरी को हम खत्म कर सकते हैं, सरकार को कैसे मना सकते हैं और सबके लिए ये कैसे सोसाइटी में इस प्रोग्राम को कैसे लाया जा सकता है। सब कुछ, बहुत सारी चीजों का इसमें वर्णन उसने किया हुआ है। वो भारत में भी आई थी, भारत के जो उसके अनुभव है, उन भारत के अनुभवों का भी उसमें वर्णन किया है। भारत में एक बाबा जी करके है, महाअवतार बाबा जी, उसका भी वर्णन इसमें आता है। गिरिवाला का वर्णन है, बहुत सारे लोगों का इसमें, बाइबल का वर्णन है, रामायण का वर्णन है, महाभारत का वर्णन है, सब कुछ उसने इसमें कहा है। बहुत भी पुरानी किताब है, 90s में लिखी हुई, पर यह पहली किताब है जो इस टॉपिक पर लिखी गई थी। तो एक विधि है फोर्सफुल। तो कई लोग ऐसी किताबें पढ़ते हैं और अचानक सब कुछ छोड़ देते हैं और फिर स्टारवेशन हो जाता है, हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, डेथ भी हो जाती है। इसके लिए मार्ग बहुत खतरनाक भी मार्ग है, इसलिए धीरे धीरे ये फोर्सफुल मेथड। अगली मेथड है ऑल्टरनेट मेथड। कई लोग उपवास करने की आदत होती है, तो हफ्ते में एक उपवास करते हैं, फिर धीरे धीरे हफ्ते में 2 उपवास करते, फिर धीरे धीरे हफ्ते में 3 उपवास करते, फिर एक दिन खाते, एक दिन उपवास, एक दिन खाना, एक दिन उपवास, फिर एक दिन खाते, 2 दिन नहीं खाते, एक दिन मील एफ चार्ट बनाते, फिर एक दिन खाते, 3 दिन नहीं खाते। ऐसा करते करते फिर हफ्ते में एक बार, फिर 15 दिन में एक बार, फिर महीने में एक बार, फिर एक दिन डिसाइड करते कि महीने में ये तारीख को खाएंगे और उस दिन भूल जाते हैं तो सीधा फिर अगले महीने। ये भी एक विधि है, इस विधि से भी लोगों ने पाया, पर ये बहुत कठिन विधि है, ये किसी को नहीं करनी है। फिर अगली विधि है कॉन्शियस ईटिंग। बहुत धीरे धीरे और कॉन्शियसली, पूरा सजगता के साथ खाना, कि मैं ये क्या स्वीकार कर रहा हूं। ऐसा धीरे धीरे जब खाएंगे तो थोड़ा सा ही खाएंगे तो पेट भर जाएगा। इस विधि से भी धीरे धीरे अंतिम अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। अगली विधि है ट्राइंग मेथड। प्रयत्न करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक ना एक दिन पहुंच ही जाओगे। अगली विधि है सन गेजिंग। सूरज को देखते रहो 9 मास तक। धीरे धीरे भूख अपने आप कम हो जाती है और इस पे बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, इसलिए अब नहीं करेंगे। उसके बाद अगली विधि है जड़ी बूटियां। कुछ केमिकल्स होते हैं साधु संतों के पास, वो खा लेते हैं जंगलों में और फिर उनको भूख ही नहीं लगती। पर यह भी बहुत खतरनाक विधि है, क्योंकि जिस दिन वो जड़ी बूटी नहीं मिली उस दिन क्या करोगे। अगली विधि है फिलोसॉफिकल इंटेलेक्चुअल मेथड। ये मेथड में बहुत साइंस की व्यक्ति स्टडी करता है कि व्हाट इज एक्चुअली ह्यूमन बीइंग क्या है। वी आर वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशंस अगर है तो निकोला टेस्ला कहता है व्हाई वी नीड फूड। इस सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक निकोला टेस्ला है। उसने अपनी उस समय स्वामी विवेकानंद के साथ, विवेकानंद की और निकोला टेस्ला की मुलाकात है। एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व, एक साइंस का व्यक्तित्व, दोनों की मुलाकात बहुत प्रसिद्ध मुलाकात है। दोनों की मुलाकात हुई थी विदेश में, अमेरिका में। और विवेकानंद ने यह भी कहा था कि ऐसा इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति यदि अध्यात्म में आ जाए तो विश्व को हिला देगा। वो निकोला टेस्ला कहता है, प्रश्न पूछता है कि एक समय आएगा कि जब हम एटम्स और मॉलिक्यूल से बने हुए हैं,
Atoms don't eat, electrons don't eat, protons don't eat, neutrons don't eat. So why do we eat? फिर हम खाते क्यों है? सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो है। तो एडिसन आइंस्टाइन को पूछा गया था, क्या इस संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, आप बताओ। उन्होंने कहा था मैं नहीं हूं, इट इज निकोला टेस्ला। तो वो व्यक्ति कहता है साइंस की दृष्टिकोण से कि ये कारण हमें पता नहीं कि हमारे शरीर को फूड की आवश्यकता है भी या नहीं। तो साइंस, उसके बाद में अगला प्रोसेसेस है बहुत सारी आज संसार में जो हो रही है। एक तो निकोलस है जिसकी 21 दिन की प्रोसेस है, रे में और है जिसकी 10 दिन की प्रोसेस है, विक्टर ट्रिवियानो है 11 दिन की उसकी प्रोसेस है। ये ऑनलाइन प्रोसेस भी अवेलेबल है, जिसको करना है कर सकते। एक रिकार्डो आखी है, उसकी 8 डे की प्रोसेस है। एक जोइचिम है, उसकी 7 हफ्तों की प्रोसेस है। तो ये इतनी विधि है और अंतिम विधि है 13वीं, खुद अपनी विधि खुद खोजो। और इस भट्टी में, इस 108 दिनों की भट्टी में हमने जो पिछले 21 दिन से जो विधि ली है वो विधि है लिक्विड डाइट, परंतु लिक्विड डाइट विथ कैलोरीज। और इसलिए ये बहुत सेफ यात्रा है। ये अभी तक जो सुना है सारे, इसमें बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। पर हमारी ये जो यात्रा है इसमें हमने क्या क्या लिया? वेट चेकिंग करना रोज, कैलोरी काउंटिंग करना रोज की, ये 2 मेथड्स ली। और अपना सारा ब्लड टेस्ट करना और अपना देखते रहना ऊर्जा का लेवल क्या है, नींद क्या हो रही है, फीलिंग्स क्या हो रही है, डिटॉक्स सिम्टम्स क्या क्या हो रहे हैं। इसलिए ये जो विधि है ये लेटेस्ट है और सबसे सेफ विधि है। तो अभी 3 दिन और बाकी है, तो 3 दिन ईमानदारी से घुटने नहीं टेकने हैं सॉलिड फूड के आगे और इसको एक अनुभव बना देना है जीवन का। और यहां जो भी बातें सुनी, जानी, समझी, ये तो हमने आपको बताई, आप खुद उनको पढ़ो, एक्सप्लोर करो थोड़ा सा। और जैसे हमने कहा उस दिन जो एक टूल दिया था वो था इंग्लिश भाषा, तो क्यों ना इस प्राणिक लिविंग को ही समझने में, जो इंग्लिश में किताबें लिखी गई है उन्हीं को पढ़ने में इंग्लिश भाषा को सीखो, समझो, जानो। ऐसी जो किताबें हैं सब ऑनलाइन अवेलेबल है, इनके बारे में पढ़ो और इनमें से ही शब्द निकालो, और वो भी एक टूल है स्टेबिलिटी, इस यात्रा तक आगे पहुंचने का। अच्छा, ओम शांति। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए। विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी। गगन गए
विजयी भव। सांधे सांधे मिट्टी मारो दे हो गई बावरे, ओ, भोली सी तेरी बांसुरी खो गई सावरे। घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल। तू निकल, तू निकल। माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव।